Hello student, in this lecture we will discuss about double fertilization. Double fertilization, it is a characteristic feature of angiospermic plant. Characteristic feature of angiosperm. If we see the structure of ovule, then first of all, ovule. This is embryo sac. Embryo sac. Embryo sac. Inside embryo sac, egg cell, egg cell, egg cell, then synergid cell. These are synergid cell. Synergid cell. Here antipodal cell. These are antipodal cell. Antipodal cell. Secondary nucleus. Single cell but two nuclei. This is central cell. In these two nuclei, these are polar nuclei. Polar nuclei. Then outside polar nuclei, a central cell. These polar nuclei are present in the central cell. Central cell. Then outside embryo sac, presence of, ध्यान से देखें हम कैसे इसको ड्रॉ कर रहे हैं. ये देखिए, दिस इज कंप्लीट ovule. ओव्यूल, ये कंप्लीट ओव्यूल है. स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा style, and this is ovary. This is ovary. Ovary. This is ovule.
ये कंप्लीट क्या है, ओव्यूल. दिस स्ट्रक्चर इज ए कंप्लीट ओव्यूल. Ovule, ovule. These are integuments. Integument. Integument. These are two structure. Integument. Integument. This side of ovule is known as salazal end. This is salazal end. Salazal end. This end is micropylar end. Micropylar end. Salazal end. This is micropylar end. Then first of all, pollination. What is pollination? Transfer of pollen grain. You know very well. Transfer of pollen grain from anther to stigma. From anther to stigma. That is known as pollination. After pollination, when pollen grain fall on it, जब पोलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर फॉल होगा. देयर आर नंबर ऑफ एजेंट्स. दीज आर हाइड्रोफिली, देन एंटेमोफिली. देयर आर नंबर ऑफ वे डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर. देन आफ्टर फॉलिंग ऑफ पोलन ग्रेन, germination of pollen tube takes place. Germination of pollen tube takes place. कब? आफ्टर पोलिनेशन. लिख सकते हैं आफ्टर pollination, germination of pollen tube takes place. And you know, germination of pollen tube is an example of chemotropism. पहले भी हम बता चुके हैं. This is a pollen tube. Pollen tube. Pollen tube. This pollen tube enter in embryo sac through micropylar end. यहां से इंटर करेगी. क्या बताया? पोलन ट्यूब इंटर into embryo sac by or through micropylar end. ये देखिए, माइक्रोपाइलर एंड से इंटर कर गई पोलन ट्यूब. अब थोड़ा सा फिर हम एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, बताते हैं. देखिए, वो ध्यान से देखेंगे कि हमने दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ये ओव्यूल की एक स्ट्रक्चर है. इनसाइड एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, देन पोलर न्यूक्लियाई. Outside presence of integuments, and this is complete ovule, and
This is a ovary. Stigma, style, ovary. Clear? After pollination, transfer of pollen grain from anther to stigma, then germination of pollen tube takes place, and this pollen tube enter in embryo sac by micropylar end or through micropylar end. Through this pollen tube, अब ध्यान से देखें, उससे पहले थोड़ा सा ये जो अदर सेल हैं उनके फंक्शन बता देता हूं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको बताएं कि डबल फर्टिलाइजेशन से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई बोर्ड एग्जाम उठा के देख लीजिए, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखें इस बात का। तो क्या बताया, अब फंक्शन देख लेते हैं। एग सेल जस्ट अभी आएगा, पोलर न्यूक्लियस अभी आएगा, ये साइड में इसलिए लिखें कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ हर सेल का अपना रोल है, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, एज वेल एज यहां प्रेजेंट है न्यूसिलस। देखिए यहां पर ये एरिया न्यूसिलस, दिस इज न्यूसिलस। क्या बताया, न्यूसिलस। न्यूसिलस देखिए क्या क्या बताए, सिनर्जिड सेल वन थिंग, एंटीपोडल सेल सेकंड वन, एंड न्यूसिलस थर्ड वन। All are nutritive in function. फंक्शन पूछा जाए कि क्या क्या फंक्शन है सिनर्जिड सेल के, क्या फंक्शन है एंटीपोडल सेल का, और क्या फंक्शन है न्यूसिलस का, तो all are nutritive, provide nutrition to developing एम्ब्रियो, और यू कैन से ओव्यूल को ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो कंडीशन है, तो देखिए आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये सेंट्रल सेल 7, मीन ये कंडीशन है 7 सेल, यानी 7 तो सेल है, और न्यूक्लियाई काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 न्यूक्लियाई। क्या कंडीशन हुई, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन, दिस इज 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताया कि हमें क्या क्या चीजें मालूम चलिए अभी, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, न्यूसिलस, ऑल आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। देन न्यूसिलस में आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ओव्यूल, ये प्रोटेक्शन भी देता है। Nucellus also provide protection, also provide protection, ये प्रोटेक्शन भी देता है। देन अब हम चलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की तरफ कि ये डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप ऑल थिंग्स यू क्लियरली अंडरस्टैंड। देन बताया कि pollination, transfer of pollen grain from anther to stigma, that is known as pollination. After pollination from pollen grain, this is a pollen grain, germination of pollen tube takes place, pollen tube enter into embryo sac through micropylar end, ये चीज सारी हम लिख चुके हैं। Then from pollen grain to pollen nuclei, फ्रॉम, या आप लिख सकते हो थ्रो पोलन ग्रेन, सॉरी थ्रो पोलन ट्यूब टू पोलन न्यूक्लियाई कम्स। यहां से 2 पोलन न्यूक्लियाई आएंगे, वो पोलन न्यूक्लियाई जब डेवलपमेंट होती है, इसमें जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, डिस्कस करेंगे हम जब हम पोलन ग्रेन को कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे। थ्रू दिस
pollen tube, two pollen nuclei. Two pollen nuclei. These are two pollen nuclei. Pollen nuclei. Two pollen nuclei come into embryo sac. Out of these two pollen nuclei comes. Out of these two pollen nuclei. अब बहुत ध्यान से देखिए, इन दो में से अब हम यहां करेंगे, आउट ऑफ दीज टू pollen nuclei वन कंबाइन विद एग सेल. इन दो में से एक किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? एग सेल के साथ. ये दो pollen nuclei इंटर करेंगे यहां से. वन pollen nuclei, दिस इज pollen nuclei. pollen nuclei plus egg plus pollen nuclei. Out of these, one pollen nuclei combined with egg, and this is known as syngamy. This is known as syngamy. बहुत important. What is syngamy? Fusion of pollen with egg cell. That is known as syngamy. Mean male and female. Syngamy. Syngamy result in formation of zygote, and zygote give rise to embryo. Zygote give rise to embryo. एक सेल क्लियर हो गई. रिमेनिंग पोलन न्यूक्लियाई, तो एक फर्टिलाइजेशन हो चुका है. रिमेनिंग पोलन न्यूक्लियाई कंबाइन विद, जो दूसरा पोलन न्यूक्लियाई है, इट कंबाइन विद रिमेनिंग पोलन न्यूक्लियाई कंबाइन विद पोलर न्यूक्लियाई. पोलर प्लस पोलन न्यूक्लियाई, पोलर प्लस पोलन न्यूक्लियाई. Polar, how much polar nuclei? Two. And how much polar nuclei? One. 2 and 1, 3. So this is known as triple fusion. This is known as a triple fusion. अब ये दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ. So fertilization takes place 2 times. One time egg plus pollen nuclei, one fertilization, and second polar plus pollen, second fertilization. So fertilization take 2 times. Fertilization take 2 times. So it is known as a double fertilization. It is known as double fertilization. क्लियर हुआ? एक बार फिर कर लेते हैं. When pollen grain fall, germination of pollen tube, it enter into the micropyle and into embryo sac. Through this pollen tube, 2 pollen nuclei comes. Out of these 2 pollen nuclei, one combined with egg plus pollen. This is known as syngamy. Result in zygote, then embryo. Other combined with 2 polar nuclei plus pollen. This is the 3 cell, so it is known as triple fusion. This result in formation of, इसके कारण क्या बन जाएगा? This is formation of endosperm. Then fertilization takes place of 2 times, so it is known as a double fertilization. Then ओव्यूल, ओवरी, इंटेगुमेंट्स. थोड़ा देखिए, कई बार ये पूछ लेते हैं फ्यूचर ओवरी इज, कि ओवरी क्या डेवलप करवाएगी. दिस इज ओवरी. ओवरी गिव राइज टू फ्रूट. ये क्वेश्चन आया था एनटीएस. ओवरी गिव राइज टू फ्रूट. फिर आता है इंटेगुमेंट्स. इंटेगुमेंट्स गिव्स
seed coat. Seed coat. Ovule gives seed. तो देखें इनसाइड क्या है, ओव्यूल, ये ओव्यूल देता है सीड। सीड के आउटसाइड क्या है, मीन ओव्यूल के आउटसाइड क्या है, इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट देते हैं सीड कोट। तो इंटेगुमेंट ने क्या दे दिया, सीड कोट। सीड के बाहर क्या होती है, ओवरी। ओवरी ने क्या दिया, फ्रूट। तो ओवरी गिव राइज टू फ्रूट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यू नो ओव्यूल अटैच विथ, ओव्यूल थोड़ा और देखें, ओव्यूल अटैच विथ प्लेसेंटा। यू नो नंबर ऑफ क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं। दे अटैच विथ प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से अटैच होते हैं थ्रू फ्यूनिकल। दिस स्ट्रक्चर इज फ्यूनिकल। दिस इज प्लेसेंटा। And the place at which ovule attach with funicle, that is known as hilum. That is known as, ये जहां पर अटैच होता है, that position is known as hilum. Ovule has two part. Ovule has two means ovule जो स्ट्रक्चर है, one is ये जो बॉडी है, एक तो क्या हो गया, जो बॉडी मींस ओव्यूल, और दूसरा क्या बताया, स्टार्क। स्टार्क फ्रॉम द फ्यूनिकल। स्टार्क ने क्या बना लिया, फ्यूनिकल। सम टाइम जो ओव्यूल है एंड फ्यूनिकल्स, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल्स अटैच टुगेदर टू फॉर्म ए रिजिड स्ट्रक्चर। ओव्यूल फ्यूनिकल से एक रिजिड सी स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज नोन एज रेफ। दैट इज नोन एज रेफ। ये एक हार्ड सी स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज नोन एज रेफ। थोड़ा याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। क्या बताया, ओव्यूल अटैच रहता है किससे, प्लेसेंटा से थ्रू फ्यूनिकल। जिस साइड फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच रहता है, वो जगह, वो पोर्शन, दैट इज हाइलम। इट फॉर्म अ हार्ड स्ट्रक्चर। ये हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अटैच हो जाते हैं हार्ड स्ट्रक्चर से, दैट इज नोन एज रेफ। So this is complete about double fertilization. And for more detail, connect with us on our YouTube channel. Like, share and subscribe. Thanks.